Motherhood comes with a lot of responsibilities. मेरी pregnancy बहुत अच्छी थी, बहुत smooth थी, but after pregnancy मेरा postpartum was very difficult. Dude, this is what I'm going through, and I'm not gonna go through it alone. यखनी पीनी है, आपने पंजीरी खानी है. You have to take your vitamins. You know, baby is out, but the weight is there. What do you do? What do you do about it? वो feeling आपको kill करना शुरू हो जाती है. पहले जैसी body नहीं रहती, पहले जैसी strength नहीं रहती, पहला जैसा peace of mind नहीं रहता. ऐसा you take care of yourself, अपना खाने का, अपनी विटामिन्स का, अपनी चीज़ों का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप का आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना, आप देख रहे हैं आही एंड दिस इज़ आही इनर स्टार पावर्ड बाय CAC 1000+. अब ये क्या है? ये एक नई सीरीज़ है जो मैंने इंट्रोड्यूस की है. आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि आई टर्न 50 दिस ईयर, एंड व्हेन आई टर्न 50 आई रियलाइज दैट women my age, women like me, women around me were mostly invisible. They felt invisible. और इस उम्र तक आते आते they were facing a lot of physical problems, a lot of mental and emotional problems. There was a dilemma, there was financial independence नहीं थी, financial literacy नहीं होती. So एक बहुत ही अजीब व गरीब सिचुएशन होती है by the time women reach 50. And उसके बाद they go into kind of oblivion. तो इस सीरीज़ को बनाने का और इकट्ठा करने का मकसद ये था that girls and women through their 20s, 30s, 40s, you know, they should be able to tap into their inner strength. And by the time they get to 50, they should feel absolutely in control of their life, of their health, of their emotions, their mental welfare, their financial, independence, सब कुछ. और इस पे बात करेंगे इस उम्मीद से that we can motivate everybody who's watching at any age, wherever you are in the world, this is for you. बहुत इंटरेस्टिंग लाइनअप ऑफ मेहमान हैं हमारी इस सीरीज़ की, और आज की मेरी मेहमान मिनाल खान. आई थिंक शी इज़ एन एक्सट्रीमली इंस्पायरिंग एक्टर. बहुत छोटी उम्र पे इन्होंने काम शुरू किया. आई थिंक शी वाज 8 or 9 व्हेन शी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द कैमरा. टीवी सीरियल्स किए इन्होंने ड्रामे किए, बहुत सक्सेसफुल ड्रामे किए, और फिर एकदम एक बहुत ही छोटी उम्र पे इन्होंने अपने करियर को बैक बर्नर पे रख दिया. शी गॉट मैरिड एंड लास्ट ईयर शी हैड हर फर्स्ट बेबी. I have Manal Khan. Manal, thank you so much. बड़ी देर से you've been out of the picture. Yeah. लेकिन मैंने कहा कि ये इतनी ज़रूरी conversation है, और आज की हमारी गुफ्तगू is about motherhood basically. Motherhood और mental health और motherhood and the joys of motherhood. कि क्या क्या उसके साथ associate होता है. I think motherhood comes with a lot of responsibilities, and motherhood के साथ साथ आपको step back करना पड़ता है from being yourself. You have to put your baby first because that उस टाइम पे वो इतना fragile, आपकी body, आपका baby, आपका mind, हर चीज़ इतना fragile होता है कि you just can't hold everything together. You have to do it step by step. आहिस्ता आहिस्ता. First you need to, जैसे आपका baby होता है, you know, you're just so एकदम से वो जो एक moment होता है जब baby आ गया होता है, जब तक आया नहीं होता ना उस वक्त तक सब कुछ सही होता है. जैसे वो आ जाता है ना तो it just completely changes the perspective of your life, of your living, of your thinking, everything. You just have to put your child first. Miracle of life है ना? The miracle of Miracle life. of You can't life just है. think about anything else. नहीं, You can't. नहीं, absolutely. मुझे बताओ मिनाल के बेबी जो था वो प्लान था, क्या क्या सीन था? Because हमने तो we didn't see you online, you were quite offline. Yeah, baby came as a surprise, but Okay. a very, very, very good surprise that we will cherish all our lives, Of course, inshallah. of course. और मुझे कोई शौक नहीं था because मेरे माइंड में था that you know I need to start my family also. Not because कि मैं बहुत lonely थी या सब चीज़ें, no, because I wanted to grow with my child also. मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी 30s में जाके you know मैं अपनी family plan करूँ. I wanted कि मैं जब 30s में पहुँचूँ तो मेरी अपनी life हो मेरे साथ. Absolutely. मैं अपनी health पे रहूँ, मैं अपने बच्चे का school ख़त्म कर चुकी हूँ, मैं अपना career पे focus दोबारा से कर सकूँ. Not that कि मैं 30s में जाके शुरू करूँगी. I'm just saying metaphorically. शादी भी जल्दी हो गई. शादी भी जल्दी हो गई. हाँ. शादी तो बहुत जल्दी में हो गई थी. बस शादी कोई प्लान नहीं था. अचानक से just fell in love, found the right person. And बस उस वक्त मुझे ये पता था that
वो ही मेरे लिए सही है. So I did it. You did it. और फिर एकदम से सरप्राइज लम्हे की तरफ से आया. सरप्राइज केम बाद में, अराउंड 2 years के बाद आया सरप्राइज. बट मैं इतनी ज़्यादा सरप्राइज नहीं थी बिकॉज आई हैड टू मच इमोशनल हेल्प. ठीक है, because my sister was 3 months pregnant already when I conceived. Right. So उसका already पहला एक और भी baby है. So she was the first person after Asan जिसको मैंने बताया, and she was so happy. She said, now you don't need to think about anything, Manal. I'm here. It's not difficult. I know you'll be scared, सारी चीजें, but I'm going to take you along with the journey with me. And it happened. जबरदस्त यार, ये बहन को बहन का फायदा होता है ना, फायदा होता है ये भी, क्योंकि बच्चे दोनों 2.5 महीने का फर्क है दोनों में. So वो साथ ही बड़े हो रहे हैं, वो तो साथ बड़े हो रहे हैं, वो तो बेस्ट फ्रेंड्स. So I don't feel left out going out. मुझे पता है कि मेरा बच्चा नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के प्रैम और बेबी बैग नहीं, एमन भी है, उसका बेबी भी, उसका भी सब चीजें. तो और आप लोग काफी इकट्ठा ट्रैवल भी करते हो, तो वो we don't, I feel कि जब एक बहन हो आपके साथ और ट्विन सिस्टर, मैं सबको ये बोलती हूँ, मेरे ट्विन ब्रदर्स भी हैं. There's nothing like it. Twins are in the family. Twins are in the family. I have twins brother also. Yes, absolutely. So मुझे लगता है कि there's बहन भाई के relationships yes बहुत अच्छे होते हैं. But I think जो twins है ना, वो अल्लाह ने एक अलग से उनको साथ जोड़ के भेजा. आप double times 2 मतलब it actually happens times 2 हो जाता है, square हो जाता है. हाँ, absolutely. मिनाल, ये बताओ कि प्रेगनेंसी एक कई लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट वक्त होता है, कई लोगों की प्रेगनेंसी बहुत आसान होती है, बट फॉर यंग मदर्स आप अपनी जर्नी को कैसे बयान करोगे? मतलब हाउ विल यू शेयर योर एक्सपीरियंस? यार अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी थी, बहुत स्मूथ थी, बट आफ्टर प्रेगनेंसी मेरा पोस्टमार्टम वाज वेरी डिफिकल्ट. आई गॉट सिक और एज इन के राइट आफ्टर द डिलीवरी मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था इंटरनली विच वाज रियली रियली बैड एंड इट वाज हाई फीवर. You had a C-section है ना? I had a C-section and उसी की वजह से मुझे एक इन्फेक्शन हुआ था that I had a fever one night of 106. Oh God. So my sister, my husband, my mother was just standing there and praying कि यार ये क्या हो रहा है, मतलब I had no idea. And मेरा बेबी 10 दिन का था, छोटा सा, और मैं इतनी बीमार हो गई थी. वो मॉम गिल्ट, वो बीमारी में से भी अपने आप को उठाना कि नहीं यार, हैव टू फीड माई बेबी, आई हैव टू नर्स माई बेबी. एंड जस्ट उस वक्त मुझे रियलाइज हुआ दैट आई एम सो वल्नरेबल, I can't do anything. मतलब if I'm sick I can't take a minute off because I'm a mother now. जबकि मेरे पास बहुत सारी हेल्प है, हेल्प सारी है, बट स्टिल when you become it actually is very very difficult. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपने एक लफ्ज बोला मॉम गिल्ट. लोगों को कुछ को समझ आती है, कुछ को नहीं आती. मॉम गिल्ट क्या होता है? What do you go through with mom guilt? Mom guilt ये होता है what I feel I can't say about any other mothers because उनकी अपनी चीज़ें हैं. मुझे यहाँ लगता था कि mom guilt मुझे तब feel होता है तब जब when I leave my baby or do something for myself, but उसी वक्त मुझे ये गिल्ट ख़त्म करने के लिए I have support of my husband and my mother especially. Then they say कि no, you don't have to feel guilty. You enjoy your life also. You go out, get your mani-pedi done, get your hair cut, सब चीज़ें करो. Leave the baby with us. We'll take care of him. So कुछ लोगों के पास हेल्प नहीं होती हम ना. किसी के पास इमोशनली हेल्प अपने पार्टनर्स की तरफ से नहीं होती, अपने रिलेशनशिप्स की तरफ से नहीं होती. कुछ लड़कियां होती हैं जो बाद में जब माँ बनती हैं तो उनकी अपनी मॉम्स उनकी लाइफ में अवेलेबल नहीं होती. आई नो पीपल लाइक दैट ऑल्सो. सो मुझे ये समझ नहीं आता कि आफ्टर प्रेगनेंसी जब बच्चा हो जाता है तब उन लड़कियों को कितना अलोन फील होता होगा जिनके पास सपोर्ट नहीं है, जिनके पास प्यार मोहब्बत नहीं है. आई एम सो लकी माशाल्लाह that I have that liberty in my life. Not everybody has it. But are you a hands-on mom? अपने हर सब कुछ खुद करते हो? या हेल्प है तो अम्मी ने मालिश कर दी तो किसी ने नहला दिया? मैं डिस्चार्ज हुई हॉस्पिटल से तो मेरे डॉक्टर ने कहा कि आप किधर जाएंगी, अपनी मॉम की तरफ जाएंगी, अपने घर जाएंगी. And I just said, no, I just want to spend this time with my husband and my baby at home. I want him to know that, this is what I'm going through. And I'm not going to go through it alone with my mom. My mom can come over and help me, but I need you. The mental peace I get from my husband, of course, I'm not going to get it from anywhere. And उसकी बाकी मेरे पास अपने घर पे help थी.
सो मुश्किल था, बट आई बेथ माई बेबी माई सेल्फ, आई स्टिल फीड हिम, आई स्टिल अभी मैं उसको नहला के खाना खिला के उसकी हाँ बॉटल्स रेडी करके उसको सब कुछ करके हाँ आई लाइक डूइंग इट माई not सेल्फ. doing it. आई आई अप्रिशिएट हेल्प कि वो हम्म मेरे लिए हैं वहाँ पे मौजूद, कि हम्म, मैं अपना कुछ काम कर सकूँ, मैं शावर कर सकूँ, खाना खा सकूँ, मेरे बिल्कुल बेबी को बिल्कुल थोड़ी देर वॉच बिल्कुल कर लें, बट आई जस्ट डोंट completely leave my baby unsupervised अटेंडेड हाँ with unattended with anybody. बिल्कुल। तो मिनाल, प्रेगनेंसी के वक्त क्या एडवाइस होगी फॉर यंग मदर्स कि अपना ख्याल कैसे रखें? मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, बिकॉज मुझे हर डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी है इट टेक्स अ नंबर ऑफ इयर्स, इट एड्स टू अ वुमन्स लाइफ। इतना आसान नहीं है। हाँ, हर औरत बच्चा ऑलमोस्ट पैदा करती है, एवरी वुमन गोज थ्रू इट, लेकिन आपकी सेहत पे टोल इसका अच्छा खासा होता है, जो जी. बाद में लेटर ईयर्स में फिर आपको एहसास होता है कि कमर नहीं सीधी की, या ख्याल नहीं रखा, विटामिन्स नहीं लिए, या खुराक नहीं अच्छी थी खाई, या पंजीरी नहीं खाई प्रेगनेंसी के बाद, तो हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हाउ डिड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी? स्टार्ट में तो अगेन यू नो व्हेन यू हैव पीपल अराउंड यू, आपकी मॉम वगैरह तो सब एडवाइस करने के लिए होते हैं, बट एडवाइसेस सारे देते हैं, वो एडवाइस को लेना और अपने ऊपर अप्लाई करना, इट्स ऑन यू. सो आई टुक द एडवाइसेस, आई टुक इट कि आपने यखनी पीनी है, आपने पंजीरी खानी है, यू हैव टू टेक योर You विटामिन्स, यू had your हैव टू. yakni panjiri vitamins यस all आई through. डिड, हाँ नॉट कि एवरी डे, कभी जब याद आ जाए तो हाँ ले लिया, ठीक है। देसी घी में पराठा बनवा के खा ले, बिकॉज यू नर्स द बेबी ऑल्सो, हाँ सो यू फील क्वाइट हंग्री अगेन एंड अगेन. सो बाकी सारी एडवाइसेस मैंने ली थी, लेकिन मुझे बस ये फील होता था कि आपको, जो लोग कहते हैं ना कि स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप, यू स्लीप व्हेन द बेबी स्लीप, यू डू स्लीप. आप छोड़ने सारे काम हो जाएंगे, सो जाए मतलब बस। सो जाएं 10 मिनट पहले सो जाएं. मतलब दैट इज, अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो आपको तो बच्चा चुप भी होगा ना तो वो रोते हुए ही आवाज आएगी उसकी, क्योंकि आपके दिमाग में वो हाँ लूप में बिल्कुल बज रहा है. बिल्कुल यू बिल्कुल हैव टू बिल्कुल। बी, गो टेक अ शावर, रिलैक्स, ब्रीथ, चेंज योर क्लोथ्स, अपने put on lipstick, put on a new nice हाँ, perfume, feel you good know, about just feel good yourself. about yourself. Absolutely, Just don't feel absolutely, कि आप, ये बहुत बड़ा चेंज आ गया लाइफ में, अब ये हो गया, you have to live with it and just carry it gracefully with your life. absolutely. मुझे याद है when my first was born, डिलीवरी के फौरन बाद मुझे था somebody bring me my pearls. I can't, I can't meet people without my jewelry. तो मैं तो जब डिलीवरी के लिए जा रही थी ना, तो मेरा तो सी सेक्शन था, इट वाज सिलेक्टेड सी सेक्शन, तो आई न्यू, तो मैं तो 10 बजे था, तो मैं 9:30 ना बेड के ऊपर बिल्कुल बैठ सही के मैंने है। कहा थोड़ा सा तो मेकअप कर लूं, मतलब सब मिलने आएंगे, मैं कैसी लगूंगी. हाँ, सो नहीं बहुत ज़रूरी है, जरूरी, बहुत I ज़रूरी felt है। nice. I don't care what people said about me Yeah, or thought about me कि absolutely, मैं सी सेक्शन भी हुआ हुआ, absolutely. मेकअप, I don't care. No, You have no. to feel nice about No, you yourself. have to feel good about yourself. Absolutely. और मेरा लड़कियों के लिए पैगाम यही है कि don't be guilty about giving हाँ, yourself time and attention. आप ये ना सोचें कि आपका, कुछ लोग होते हैं, हाँ बेबी हो गया छोड़ देते हैं अपने आप को, वेट बढ़ गया छोड़ देते, कम कैसे करें, हम तो कर ही नहीं सकते. हाँ आप सब कर सकते हैं, बच्चा वो बड़ा होता जा रहा है साथ साथ, अपने आप को भी तो ग्रो करें उसके साथ. जस्ट absolutely, डोंट लीव योर सेल्फ वहाँ कि बच्चा बड़ा हो जाए और आप वहीं की वहीं हैं जहाँ आपने absolutely, बेबी आपका absolutely. डिलीवर हुआ है. बिल्कुल. I'm delighted to have partnered with CSE 1000 Plus for Ahi InnerStar. It's a brand that I trust personally. I've been using it for years for energy, bone strength, and vitality. The really cool thing is that it comes in several great flavors, orange and mango being my absolute favorite, also because mango comes in a sugar-free option. We all need calcium for core strength, and the great thing about CSE 1000 Plus is that it is affordable and accessible for everyone. सो मिनाल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो पोस्टपार्टम भी है, और पोस्टपार्टम में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं कई लोगों को प्रेगनेंसी से ज़्यादा. एक तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ रियल, बहुत लोगों को अब इसकी समझ आ रही है कि एक जो विथड्रॉल होता है मेजर, इतना एक बेसिक सी चीज़ है, लोगों को नहीं समझ आती कि आपके अंदर एक चीज़ जो है वो बढ़ रही है और आपके अंदर और एकदम वो नहीं होती, तो उसका एक डिप्रेशन और एक हॉलो फीलिंग होती है. आपको तो एकदम समथिंग इज गॉन फ्रॉम योर लाइफ, या फिर डिप्रेशन में से गुजरना, या फिर एकदम हार्मोन्स ड्रिप होते हैं तो आपका हेयर लॉस, स्किन का ख़राब होना, और सबसे जो बड़ी चीज़ लोगों को नज़र आती है वेट गेन. एंड यू योरसेल्फ हैव एड्रेस्ड दिस कि Yeah. इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. सो पोस्टपार्टम का क्या एक्सपीरियंस है? पोस्टपार्टम का एक्सपीरियंस थोड़ा सा मुश्किल था, बिकॉज ऑब्वियसली जब आप यूज टू नहीं होते हैं, ऑब्वियसली आप
पहले प्रेग्नेंट हो गए हैं, अब आपका बेबी हो गया है, आपका बेबी भी baby is out but the weight is there. Yeah. What do you do about it? Yeah. वो फीलिंग आपको किल करना शुरू हो जाती है. वो फीलिंग आपको ना अंदर से वो कर like you don't fit anywhere, you don't fit in your own clothes और सारी चीज़ें. लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका बेबी हुआ है तो आप अगले दिन से डाइट पे चले जाएं. You take your time थोड़ा सा, but don't stop struggling for your सेल्फ कि आप ऐसा नहीं कि मैं नहीं समझती कि वेट कम करना एक नामुमकिन सी चीज़ है. आई थिंक कि अगर लड़कियां और लड़के अपना ख्याल रखें, एक हेल्दी डाइट हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ कुछ भी हो सकता है. आप कर सकते हैं. हाँ, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा चीज़ें पहले जैसी बॉडी नहीं रहती, पहले जैसी स्ट्रेंथ नहीं रहती, पहला जैसा पीस ऑफ माइंड नहीं रहता. आपको नहीं पता होता कि अभी आगे पीछे क्या हो रहा है. आई रिमेंबर द फर्स्ट नाइट व्हेन आई केम बैक फ्रॉम द हॉस्पिटल, आई डिडंट स्लीप एट ऑल बिकॉज आई डिडंट नो इफ माई बेबी इज ओके, if he's breathing, if he's okay, he's fine, उसने करवट तो नहीं, मतलब वो कुछ होगा तो नहीं. इतनी वो डर वाली फीलिंग होती है ना. वो इतनी स्कैरी फीलिंग होती है कि आई डोंट थिंक सो कोई चीज़ नियर भी आती है उस फीलिंग के. the feeling of losing, the feeling of fear कि something will happen. वो चीज़ें पोस्टमार्टम में मेरे लिए बहुत थी कि मुझे not depression, I will not say कि I was in depression, but sometimes I just didn't feel so good about myself. I just wanted to cry. Nothing related to my kid, it's just me. वो माशाल्लाह he was just chilling and enjoying himself. और बस थोड़ा थोड़ा मुझे कभी होता था कि यार एकदम से बैठे बैठे दिल डूब रहा है, क्यों हो रहा है ये इस तरह से. But then I figured it out. I said कि मुझे था कि I'm not going out, I'm not meeting friends, I'm not entertaining myself, I'm not putting any makeup on myself, I'm not trying to look nice, I'm trying to go in a darker phase in my life, so I have to just stop doing that. तो फिर उसके बाद मैं अपने भाई की शादी थी, I decided I will go get my hair colored, I will go get my hair dyed, and it's okay if I'm looking a little chubby, I'll lose my weight. तो मैंने wait किया 3 months के बाद I just started focusing on myself. 3 months I gave to my baby completely. अभी भी I give my 24 hours to him, but Hassan but थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम निकालना होता है, and I make sure कि मैं अपने लिए 1-1.5 घंटा दिन में निकालूं. उसमें मैं अपना वर्कआउट करती हूँ, मेरे अपना हेल्दी एक रूटीन है. मैं सुबह से उठ के अपना जो भी जूस कॉफ़ी, उसके बाद अपना वर्कआउट करना, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करना, शावर करना, उसके बाद यार I can take a day आगे. उससे पहले I want some time for myself also. Do you feel कि pregnancy के बाद body में weaknesses आ जाती हैं या? I lost half of my hair. You did? Yes, I lost half of my hair. मैं ब्रश करती थी और मेरे बाल में से मेरे ऐसे बाल निकलते थे समझ आती कि प्रेगनेंसी में तो बाल बड़े अच्छे हो जाते हैं, बाल वो चले जाते हैं सारे. और मैं रोना आता था कि यार ये भी अब मैं क्या गंजी भी हो जाऊंगी, अब क्या होगा. बट देन वो सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना खाने का, अपनी विटामिन्स का, अपनी चीज़ों का, अपनी हेल्थ का, अपनी स्लीप का आप थोड़ा थोड़ा ख्याल रखें, सब चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं. मतलब I don't think there is a full stop to anything. You have to just just dig it. Is it, how difficult is it कि आप इस सब में से गुजर रहे होते हैं और इमोशनल टर्मोइल होता है प्रेगनेंसी का, और फिर एक नई ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है, उसकी ज़िम्मेदारी भी होती है, प्यार तो बेतहाशा होता है बट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है बच्चे की, वही ना, हर वक्त आपको डर होता है. बट व्हेन यू आर डूइंग ऑल ऑफ दिस इन द पब्लिक आई, उसका प्रेशर कितना होता है? जैसे मैंने एक पोस्ट इंस्टाग्राम पे लगाया था, मैंने पोस्टेड अबाउट माय एक्सपीरियंस. इट वाज नथिंग. मैंने बस जस्ट बैठी हुई थी एंड आई जस्ट फेल्ट राइटिंग इट, आई रोट इट. उसके बाद नीचे जितनी भी कमेंट्स आए ना, आई फेल्ट कि यार एवरी सिंगल वुमन इन दिस कंट्री, इन दिस वर्ल्ड भी आप कह सकते हैं, बिकॉज बॉडी शेम तो हर जगह है. एवरी वुमन इज गोइंग थ्रू द सेम सर्कल ऑफ लाइफ, एवरीबडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द सेम थिंग. चलो हम तो पब्लिक फिगर्स है ना, हमें तो रैंडम लोग कमेंट करते हैं, बट हमारी फैमिली सपोर्टिव है. हमारी फैमिलीज नेवर, वो हमें कभी बॉडी शेम नहीं करती. हमें तो कभी नहीं बोला कि मेरी मॉम ने कि अपना वेट कम करो या वो करो. हस्बैंड ने नहीं कभी कहा कि वेट लूज करो? या हस्बैंड ने कभी ये नहीं कहा कि वेट कम करो क्योंकि ऑब्वियसली आई डोंट नो व्हाई. ऐसा कभी तुमने क्यों नहीं कहा, मुझे हमेशा कहते तुम अच्छी लगती हो. खैर माय हस्बैंड वो मुझे हमेशा से बस
आई डोंट थिंक कि एमन और मेरे हस्बैंड ने कभी हमें इस तरह से कभी कुछ बोला होगा। तो अच्छी बात है, आई सपोर्टिव। थिंक हाँ, इसी तरह से होना चाहिए यार। Yeah. मेरी भी मॉम है, मेरे भी डैड थे। आई नेवर सॉ देम डूइंग दैट इन देयर लाइफ। बिल्कुल। मेरे भी लाइक यू नो मेरा भाई जस्ट गॉट निकाह, उसका निकाह हुआ है, बिल्कुल, मैरिड है। तो मैं उनको देखती हूँ जिस तरीके से वो लोग लड़कियों के साथ रहते हैं ना, इतने प्यार से। आई वांट कि इसी तरह के सपोर्ट बाहर से मिलनी चाहिए औरतों को भी। अब हम तो पब्लिक आए में, हमें तो रैंडम लोग कमेंट्स करके चले जाएंगे। जो लड़कियां वहाँ कमेंट कर रही थी, आपको लगता है कि उनको रैंडम पब्लिक कमेंट्स कर रही होगी? उनको कमेंट्स विद इन द फैमिली मिलते हैं, एब्सोल्युटली। उनको हस्बैंड से मिलते हैं, उनको अपनी सास से मिलते हैं, उनको अपनी दूसरी फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनको लाइक यू नो उस तरीके, वो सबसे ज़्यादा डिसहार्टनिंग है। हम तो इग्नोर कर देंगे, मेरे तो इतने फॉलोअर्स हैं, आई डोंट केयर, कोई भी कुछ भी बोले, बट गुड फॉर यू। दे डू, दे डू, द they वुमेन do. इन द हाउस दे डू। अगर हाँ. मैं कोई वर्क, अगर ऐसी लड़की होंगी घर में, कोई आके मुझे मेरी फॉर एग्जाम्पल मेरी देवरानी आके बोलना सोचे आई नीड टू लूज वेट, कब तक, अभी तो तुम्हारे बच्चे को भी 6 महीने हो गए, अभी तक नहीं कम किया। तो सोचें उसके दिमाग में क्या गुजरती होगी कि यार मतलब यू नो एज इफ आई एम नॉट ट्राइंग, यू नो यू कांट आस्क समबडी, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने दिमाग में इतनी वॉर्स चल रही होती हैं टू डू दिस, not to do this, And it's not so easy. it's not easy. It's not easy. तो फिर you can't question somebody like this. I think more than losing weight, the focus होना चाहिए how to get healthy as soon as possible, because pregnancy के साथ एक major depletion तो body से होती है। वो कहें या ना कहें होती है, आपकी बॉडी में से बहुत कुछ चला जाता है, तो उसको रीगेन करना, हेल्थ रीगेन करना, स्ट्रेंथ रीगेन करना बहुत ज़रूरी है ज़्यादा। सी गुड मेडिकल हेल्प, ऑब्वियसली डॉक्टर्स अच्छे होते हैं, वो आपको सारे विटामिन लिख कर देते हैं, आपको चीज़ें लिख के देते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट शुरू में मैंने बहुत ख्याल रखा। हाँ, मैं अपना विटामिन सी आई टेक एवरी डे बिकॉज वो एक मेरी आदत बन चुकी है, बट बाकी कैल्शियम वगैरह और ये लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ आई एम फोकसिंग ऑन दैट कि यार अब मैं आई एम ईटिंग हेल्दी, बट कुछ चीज़ों की मेरी बॉडी अंदर से उसको नीड है, बॉडी को नीड है जो कि सप्लीमेंट्स के थ्रू आएगी। आप गो यू नो गेट योर मेडिकल टेस्ट डन, अपनी गायनोकोलॉजिस्ट के साथ आप बैठें। ज़रूरी नहीं कि आप प्रेग्नेंट हो तभी आप गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएं, आप वैसे भी जा सकते हैं। यहाँ तो एक टैबू है कि क्यों गए, क्या वजह है करने क्या गए थे, मतलब क्या हो रहा है। गर्ल्स को बहुत हेल्थ इश्यूज होते हैं, पीसीओएस होता है, आपको नहीं पता कितनी लड़कियां हैं जो हेल्दी ईटिंग करती हैं, डाइट करती हैं, वर्कआउट कर रही हैं, स्टिल दे आर एबल टू लूज वेट बिकॉज ऑफ देयर मेटाबॉलिज्म, उनका हेल्थ इशू, उनको नॉलेज ही नहीं है पीसीओएस के बारे में, बिकॉज हम लोगों ने इतनी दी ही नहीं है कभी। बिल्कुल, वी डोंट नो। मतलब आप जब हॉस्पिटल जाएंगे, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करते हैं, देन दे टेल यू कि यार ये आप में है ये इश्यूज, लाइक यू नो, और इसको इस तरह से कम करना है। बड़ा मुश्किल है PCOS so girls take care of yourself, basic यही है। Yes, do it. You're lucky if you have a supportive family structure. वो आप बहुत, अगर नहीं है तो you need to take care of yourself regardless. ये बात तो पक्की है। Hey, तुम हर रोज एनर्जाइज रहती हो, गुड जॉब। अपने कल का खास ख्याल रखती हो, अपनी हड्डियों को मजबूत रख के। इतना ही आसान होता है अपना रोज का डोज that has vitamin C, B6, D3 और जरूरी कैल्शियम जो दे आपको एनर्जी, वाइटैलिटी और बोन स्ट्रेंथ। Get your रोज का डोज। CSE 1000+, give your best हर रोज। मिनाल, do you miss your thriving career? आखिरी जो 2 ड्रामे थे वो तो कोई सुपर हिट थे, और उसके बाद 3 ड्रामे सुपर हिट थे, और उसके बाद you disappeared, और अब full time mom and full time wife and family. Not full time mom and full time wife. I have a business. I'm quite busy with that. और थोड़ा बहुत like you know I'm doing my भाई लोग तो टीवी पे देखना चाहते हैं और क्या ये सवाल, जब मैं ये सवाल you know whenever I wake up in the morning I miss it. Of course I do. That was मेरी लाइफ का मेजर पार्ट. इफ आई एम यू नो 25 टुडे, आई स्पेंट 22 years, almost 15-16 years in that industry. You know, मेरा तो मेन पार्ट मेरी लाइफ का वो वहाँ है, मेजर पार्ट. मैंने अपनी फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं किया. आई स्पेंट इट विद माई अदर पीपल, माई अदर फैमिली, माई मीडिया फैमिली. सो यू नो आई डू मिस इट, बट आई एम सो हैप्पी दैट यू नो गर्ल्स आर डूइंग अमेजिंग वर्क. अच्छी ड्रामाज बन रही हैं, सारी चीज़ें. और and you know deep down I really want to do it, and of course I will, inshallah. Will you return to television one day? One day, हाँ. मगर उस वक्त तक like you said, absolutely you're very busy. आपका अपना beauty brand है,
और how is that doing? It's doing good. Doing really yeah, good, we're huh? launching a few new products. We've been working Skin on recipe, it. Yeah, huh? skin It's recipe. doing well, and then you're an influencer, and you're constantly, Doing content. I'm huh? trying You're making now. content. See, I didn't know. I had no confidence after the baby. Huh. I didn't have any confidence because I just didn't like myself that way. I worked hard for myself. Yeah. I had to do it. मुझे ये करना था. मेरा Instagram dead हो रहा था. Not about Instagram. मैं कुछ I wanted to be a part of it. मैं क्यों ना मेरे fans हैं. They want to see me. मैं क्यों ना interact करूँ. कभी-कभी अपनी life का छोटा सा part share करने में और लोग देखना कोई चाहते इतना हैं. बड़ा issue नहीं है. So फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा वर्कआउट शुरू किए, डाइट शुरू की, एंड स्टार्टेड थोड़ा सा बेहतर. तो नाउ आई एम थिंकिंग अब थोड़ी बेहतर वीडियोस बनाना शुरू हो गई हूँ, तो पीपल आर लाइकिंग इट. आई डोंट नो तो कब तक डाइट चलेगा. इफेक्टिव कौन सी डाइट है आजकल? व्हाट डाइट इज वर्किंग फॉर यू? यार अब तो लोग तरह-तरह की डाइट्स कर अब तो रहे हैं, लोग पता नहीं तरह-तरह के क्या-क्या कर रहे हैं. आई थिंक इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द वे टू गो. You think so? या आई थिंक सो, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होता So है. what ratio are you on? 16 and I did 18. 8. हाँ. बट मैं पूरा नहीं कर सकती. मैं 4-5 दिन करती हूँ, फिर आई टेक अ ब्रेक 1-2 दिन का, फिर आई डू इट अगेन. बट बीच में there's nothing something एक चीज़ नहीं मैं लेकर चल रही. वर्कआउट मेरा अपनी जगह पे एवरीडे चल रहा है. there's a routine that I follow in the morning till my workout. उसके बाद मैं खाना वगैरह खाती हूँ. I'm controlling my portions. I'm trying to cut down on sugary drinks, carbonated drinks, sodas और fried food. ये सारी चीज़ें बहुत मुश्किल होता है. नहीं, मुझे तो बहुत पसंद, मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है ये सब कुछ. फास्ट फूड, आई लव. गिल्टी प्लेजर क्या है? पिज्जा? No, burger. I think guilty pleasure is my burger. Burger? I just love it. I don't know. I should not eat it. मैं नहीं खाती हूँ. 2 हफ्ते में एक बार चीट कर लेती हूँ. तो मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, आज हाँ, लेकिन लीन बीफ का बर्गर चलता है, ठीक है. हाँ, हाई प्रोटीन बर्गर सही है. कभी-कभी चलता है. स्वीट टूथ नहीं है. स्वीट टूथ प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा हो गया था. और लाइक एक्सट्रीम हो गया था कि मैं दिल चाहता था बस कुछ ना कुछ मीठा खाओ. फिर डॉक्टर ने कहा नो, यू आर ऑलमोस्ट बॉर्डरलाइन डायबिटिक, सो यू हैव टू स्टॉप डूइंग इट, ईटिंग इट. एंड एबनॉर्मल वेट मेरा गेन हो रहा था. सो डॉक्टर आई पुट ऑन 38 kgs ऑलमोस्ट, मतलब ऑलमोस्ट 40. एंड आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज ऐसा नहीं है दैट आई केप्ट ऑन ईटिंग. जैसे लोग कहते हैं इतना खाया होगा, ये नहीं यार, हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है. मतलब मुझे नहीं, मेरी डॉक्टर कहती थी तुम क्या करते हो घर जाके, हर विजिट पे आते 3 kg बढ़ जाता है. लड़कियों का तो बढ़ता ही 3-3, 4-4 है पूरी प्रेगनेंसी में. एंड आई वाज जस्ट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं अब क्या ऐसा करूँ. वॉक कर रही हूँ, डाइट भी ख्याल रख रही हूँ, मीठा भी नहीं खा रही, फिर भी वेट बढ़ रहा है. तो फिर शी सेड इट्स ओके, जस्ट लेट इट गो. उसने डॉक्टर ने, शी वाज सो नाइस, शी सेड इट्स ओके, डोंट. वो कुछ डॉक्टर्स होते हैं बड़ी अच्छी डॉक्टर है. हाँ, ये बड़ी बहुत आपका अच्छी सी सेक्शन हो जाएगा, नॉर्मल नहीं होगा. उन्होंने कहा अब क्या करें, अब नहीं हो रहा तो मैं आपको क्यों प्रेशर दूं कि आपका मैं जबरदस्ती नॉर्मल बेबी लाइक हो जाएगा. इट्स ओके मनाल, जस्ट go with the flow. go with the flow. और सी सेक्शन के बाद लूज करना भी ज्यादा मुश्किल होता है. ज्यादा मुश्किल, because 3 months तक तो you're not allowed to lift weights and everything, but I think consistency is the key. पता है आमना, कोई भी हो, मैं तो अपनी मॉम को इतना कहती हूँ, she's having health issues also. मैं उनको ये कहती हूँ, ममा you have to just start taking care of yourself. आप अपना lifestyle हल्का हल्का चेंज करना शुरू करेंगे, your life will be changed. Don't think that my life is just going to be just 50. Don't say that. मैंने कहा please stop it. मैंने कहा आपको you have to just be consistent with your diet. थोड़ा सा चलना फिरना करें. बिल्कुल. Just take it slow. But do it. The cue is that you want to be in control when you're at 50. और उसकी तैयारी जो है वो 20 से ही शुरू करनी पड़ती है. बिल्कुल, तैयारी उसी वक्त से शुरू करनी पड़ती है. तो टेक अवे यही है कि थ्रू योर प्रेगनेंसी टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. दिस टाइम आई मेड प्रॉमिस टू माय सेल्फ कि अब मैं वर्कआउट नहीं छोड़ूंगी. मैं अपना अचीव कर लूंगी गोल वेट, उसके बाद भी आई विल डू इट फॉर माय सेल्फ. बिकॉज मुझे नहीं पता मैं 50 पे पहुंच गई हूं, मुझे क्या हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे. आई डोंट नो मेरा कौन ख्याल रखने वाला होगा. व्हाट हेल्थ इश्यूज इज योर मदर गोइंग थ्रू? माय मदर हैज डायबिटीज. उनको तो 20 years से है. And she's 50? she's not 50, she's almost 50. Okay. She's younger than I am. Yeah. Nice, but she's वही मैंने कहा ना कि somewhere in the 40s ये हेल्थ इश्यूज किक इन करने शुरू कर देते हैं. मुझे लगता है सबसे ज्यादा हेल्थ इश्यूज आपके ट्रिगर करते हैं आपकी प्रेगनेंसी में, व्हिच यू इग्नोर. आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर वहीं से बढ़ता है. बिल्कुल. और अगर वहां पर आप कंट्रोल नहीं कर सकते तो इट डजंट लीव यू. नो वो आपके साथ रहेगा. सो कहीं कहीं अपने डॉक्टर की सुननी भी चाहिए. नहीं सुननी चाहिए. डॉक्टर्स नीड टू गाइड प्रॉपर्ली. एब्सोल्युटली. लाइटली नहीं ले सकते हेल्थ को. लाइटली नहीं लेना चाहिए.
और लेकिन सर पे भी नहीं सवार करना चाहिए, एक बैलेंस क्रिएट आई थिंक प्रेगनेंसी इंजॉय करें, अपना पोस्टमार्टम इंजॉय करें. पोस्टमार्टम में वैसी इतनी चीज़ें आती हैं दिमाग ख़राब करने के लिए. हाँ. नेचुरली आपके हार्मोनल इश्यूज इतने होते हैं, आपका माइंड इज़ नॉट देयर, तो जस्ट block negativity. Yeah. Block everything. Focus on your baby, on your health, on your husband. Do you think there are any techniques to deal with postpartum hormonal imbalances जो होते हैं, जो which do lead to a kind of depression? अगर रोना आ रहा है तो मैं उसको depression ही कहूँगी, although हम ज़रूरी नहीं कि वो एक clinical depression हो, लेकिन mood swings तो होते हैं और वो वाला वक्त आता है कि बिला वजह आपको रोना आ जाता है. तो how do you recommend that people deal with that? कोई टिप्स एंड ट्रिक्स हैं? टिप्स एंड ट्रिक्स तो मुझे सबसे ज़्यादा जब मुझे थोड़ा सा इशू होता है एंजाइटी का, वो तब से है जब से सिंस आई लॉस्ट माय फादर, उसके बाद से द फियर ऑफ लूजिंग इट जस्ट इट्स देयर. तो वो एकदम से जब वो मुझे फील होता है ना, तो मैं तो अपने हस्बैंड को बता देती हूँ, एहसन को. आज मैंने कहा था एहसन आज सुबह से ना बस दिल बहुत अजीब सा हो रहा है, and I'm going to take it very slow today. जैसे परसों happened with me. I woke up, I was just not feeling myself. I slept fine, happy, सब चीज़ें. I woke up, I was so tired. मेरा दिल बार बार ऊपर नीचे इस तरह से हो रहा है, पता नहीं क्यों. There was nothing wrong. Everything was just completely fine. And I just told him, मैंने कहा I'm going to take the day off today. I'm of course मेरा बेबी साथ है, वो तो साथ ही रहेगा, but I will not do anything extra today. I will not meet anyone. मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करूँगी. You recognized कि मतलब मुझे टाइम चाहिए. And I did that. I took मुझे वर्कआउट करना था, मैंने अपने वर्कआउट के कपड़े पहने हुए थे. And I just stood there, said I can't do it. मैं नहीं कर सकती आज वर्कआउट. मेरा बस वो मैच नहीं कर पा रहा मेरा मेंटल लेवल उस चीज से. बिल्कुल सही. I didn't do anything. I took a nice shower. I brushed my hair. मैंने नया ड्रेस निकाल के पहना, अपना कॉफी बनाई, टीवी चलाया, and I just relaxed all day. And मैंने मतलब काम भी साथ किया, बिकॉज मैं साथ में लोगों ने ट्रोल करना है कि इनके घर में काम कौन करता है. और हसन क्या कर रहे थे इस वक्त? वो साथ होता है बट I took my day. मैंने अपना मैंने यही फील किया कि if you're feeling too overwhelmed, just take 5 minutes. आप बाथरूम चले जाएं, shower on करें, just listen to the water, sit and take that time for yourself. Yeah. Read something, message, voice note a friend, कोई किसी को बात कर लें, कोई फनी वीडियो देख लें. 5 minutes distract yourself. What calms you ऐसी सूरत हाल में, जिसमें मैं अगर मुझे पानी की आवाज़, समुंदर बहुत काम कर देता है, वो what calms you? मतलब मुझे ना इंस्टेंटली एक शावर बहुत काम करता है. हाँ, तो मैं जब भी गुस्से में होती हूँ ना, थोड़ी हीट अप कॉन्वर्सेशंस ऐसे, गो यू नीड अ शावर, गो टेक अ शावर, टेक 10 minutes देन विल टॉक. सो आई थिंक दैट इज माय गो टू पीस ऑफ माइंड, दैट आई गो टेक अ शावर. वो सब चीजें मुझे लगता है सब एंजाइटी धुल के चली. बिल्कुल. सो नाउ आई एम ओके. आई कम आउट एज अ न्यू पर्सन, फ्रेश, लाइक नथिंग हैपेंड. तो मेरे ख्याल है एवरी वुमन also needs to find those happy markers, small moments in छोटे-छोटे कौन सी चीज आपको खुशी दे रही है. कि आप निकलें, आप बाल बनाएंगे तो डिप्रेशन खत्म होएगा, आप हेयर कट, आप नेल्स के लिए जाएं. नो, जस्ट टेक 2 minutes फॉर योरसेल्फ. थिंक अबाउट योरसेल्फ, थिंक अबाउट द बेबी. इंसान डिप्रेशन में जाता है, जस्ट थिंक कि अगर आप डिप्रेशन में चले गए ना तो इसका क्या होना है. यू हैव टू जस्ट आई नो कुछ लोग होते हैं जो नहीं इस चीज़ से, इस फीलिंग से ओवरकम कर सकते हैं. उनकी वो बिकॉज उनके ट्रॉमास, उनकी बचपन से रिलेटेड, उनके बड़े होकर चीज़ें, उनकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आई होती हैं, ऐसे ओकेजन्स होते हैं जो उनकी दिमाग में, उनकी बॉडी में, उनके हार्ट में एक मार्क छोड़ जाता है जिसको कोई भी नहीं फिल कर सकता. और वो सिर्फ वही ओवरकम कर सकते हैं. आई कांट टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ अदर पीपल. दिस इज जस्ट माई एक्सपीरियंस. If I am having anxiety, this is what calms me down. कि I take 10 minutes away from anything. And मैं अपनी कैफीन भी कट करती हूँ. मुझे फील होता है कि कैफीन से भी मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी बढ़ती है कि अगर मैं बैक टू बैक कॉफ़ी पीऊँगी तो मुझे और ज़्यादा कुछ ना कुछ फील होना शुरू हो जाता है. जस्ट I hope this helps. No, that's valuable advice, and I hope that all the young mothers out there are listening. कि take time out for yourself, take care of yourself. बेबी का भी ख्याल रखना है, लेकिन अपना भी ख्याल रखना है साथ साथ में. हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपना भी ख्याल रखें, बिकॉज अ स्ट्रॉन्ग मदर will build a strong home basically.
and a happy mother will have happy children. I mean, वही बात है कि आपने अपनी खुशी का ख्याल रखना है. These are very, very valuable lessons, and I hope that the journey continues like this for you. And I hope we see you back on television as well Inshallah, as soon as Hassan grows up a little. And पहले 5 साल तो formative years बहुत ज़रूरी होते हैं बच्चे के माँ के साथ. I personally feel that mothers need to be hands-on the first 5 years. शायद लोगों को लगे थोड़ा outdated concept है, मगर नहीं है. No, I नहीं है. completely agree with you. Yeah. और आपको पता है मैंने तो सामने देखा है, मतलब you know I have a sister who got married. वो भी अपनी टॉप पे थे करियर के. बिल्कुल. वो तो उस वक्त वो तो बिल्कुल ही अलग, उस वक्त तो इंस्टाग्राम वगैरह भी नहीं था. वो तो she was 19. She was 19. She got married. She became a mother. उसके बाद you know the woman I see today is not the woman जो एमन पहले थी. हाँ, वो बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुकी है. शी इज़ अ मैच्योर. वो आपको एडवाइस कर सकती है. मैं अभी भी अपनी चीज़ें उसी को डिस्कस करती हूँ जाके, यार मुझे ये करना है, मुझे बिकॉज आई नो दैट यू नो शी इज़ मोर अंडरस्टैंडेबल. शी इज़ मोर एक्सपीरियंस इन एवरी वे ऑफ लाइफ. बिकॉज आई फील कि वो बड़ी मुझसे, चाहे वो 28-29 मिनट्स बड़ी है, बट आई फील दैट शी इज माई बिग सिस्टर. Huge shout out to Eamon as well. Yes, Eamon. And also huge shout out to Essen for being a good supportive husband. Yes. And also to Hassan for bringing so much joy in your life. And Minal, thank you so much for sharing your journey with us. And I hope that आपके through बहुत सी लड़कियाँ इंस्पायर होंगी और उनको समझ आएगा कि नेविगेट कैसे करना है. ज़रूरी स्टार्स के लिए फ़र्क नहीं होता, सब ने गुजरना है इस चीज़ में से. एक जैसी होती हैं. हाँ, हाइज एंड लोज एक जैसे होते हैं. थैंक यू सो मच. इट वाज डिलाइटफुल हैविंग यू. बड़ा मज़ा आया. एक तो इतनी देर से वी वर प्लानिंग एन इंटरव्यू और फिर यू डिसअपीयर्ड एंड देन यू हैड अ बेबी. मैंने कहा ये सब कुछ के बाद कितना अच्छा वक्त मिला. दैट दिस वाज सच एन इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन टू हैव. थैंक यू फॉर हैविंग इट विद मी. आई एम सो हैप्पी दैट वी एक्चुअली सेट Yes, today. absolutely. I talked about other women also. And yeah, absolutely. And women should talk about other women in an uplifting and Yes, positive way. yes. Build other women, help them, support them. हर एक के पास support नहीं होता. हर एक के पास एमन जैसी बहन नहीं होती. Support system नहीं होता. Supportive husbands नहीं होते. लेकिन women should support other women. Yes. And I think these kind of interviews really helps other women. I hope so. I hope so, Minal. Really, I hope so. And ultimately, aim ये है that women also need to help themselves. शुरू अपने आप से ही होता है. मैं तो हमेशा ये कहती हूँ कि start with yourself. Start That's with yourself. And at the end of it, I have a very small token for you. Thank you. Customized it for you. Then there's like, you know, a little book on parenting. So I hope you enjoy reading it. And you wish your parents Thank you. That's so sweet. Exactly. मैंने कहा थोड़ी सी things that can help you through your little journey of pregnancy, and thank you. Some little gifts for you. And I hope to see you again. Inshallah. And inshallah मिलते रहेंगे and हम पैगाम देते रहेंगे लोगों को अच्छे प्यार का, प्यार का. Absolutely, absolutely. Always. And again, thank you so much.